everyone, I'm Swati Joshi from Ayush Care. First, I would like to wish you all happy Holi today. Today's subject is root chakra or Muladhara chakra. Now, the age for root chakra is from womb to 12 months, that is 1 year, till the child is 1 year old. The root chakra is already developing, and this is the developed stage of root chakra. That is the first chakra in our body. The element is earth element, planet is Mars, Mangal. Location of root chakra is the base of the spine, and all the organs like thighs, legs, ankles, feet, everything come under the root chakra. That is the first chakra. All the elements or the deficiencies in this, if you heal this chakra, if you have a knee pain or leg pain, you can heal this first chakra and the pain will go. Now, what is the task of root chakra? What is the main thing? It is the physical growth, motor development and bonding. Needs and issues are trust, nourishment, safety, right to be there, and the color is red. Now let's see the game of pretend. That's the infant who has just left the dark womb. When the child takes a birth, it's there in the dark, in the mom's womb, which is dark, and it feels very safe. And as soon as it comes out, this blaring light is there, and the child is pranked and it starts crying and all this thing. It is faced with the harsh reality of life. पहले होता है कि हाँ एक कुकून में रहता है बच्चा, वो मम्मी जो खाती है वो ही उसको मिलता है, एक डार्क इसमें रहता है, बाहर आने के बाद लाइट ब्लेयरिंग लाइट होती है, उसको मारा जाता है, तो टच जो फील होता है तो वो उस सारे से वो थोड़ा घबरा जाता है. And for several months the child cannot do anything for himself. उसको अगर भूख लगती है, कुछ डिस्कम्फर्ट है, तो वो रोकर बताता है, खुद बता नहीं सकता. The child can't do anything for himself. और इसी में ट्रस्ट और मिसट्रस्ट के इश्यूज आ जाते हैं. अगर बच्चा रोने लगा, उसकी मम्मी को पता चला भूख की वजह से हमारा बेटा रो रहा है, तो उसको दूध दिया जाता है. अगर तभी पता नहीं चला और फिर मिसट्रस्ट तैयार होता है बच्चे के मन में, इनिशियली मिसट्रस्ट तैयार हो जाता है. एंड देन दिस चाइल्ड स्टार्ट्स थ्रोइंग टैंट्रम्स. कभी बहुत देर रोता ही रहता है. हम लोग बोलते हैं ना ये बहुत ही बचपन में बहुत ही रोता था ये बच्चा, या यू नो दैट साइड ऑफ थिंग्स ऑल स्टार्ट्स, दिस ऑल इश्यूज स्टार्ट्स ऑकरिंग. And if you are confident that the world is a friendly place for you, then you have the sense that you will live. अगर बच्चों को एक कॉन्फिडेंट फीलिंग आती है, एक कंफर्ट की फीलिंग आती है कि नहीं मैं मेरी मम्मी के वोम से बाहर आई हूँ, दिस प्लेस इज वेरी गुड फॉर मी, आई गेट द केयर दैट आई यूज्ड टू गेट प्रीवियस टू माय बर्थ, देन द चाइल्ड विल सर्वाइव एंड इट विल बी अ हेल्दी चाइल्ड. दैट्स अ फीडिंग, होल्डिंग, वार्म, फिजिकल कंफर्ट मस्ट कम फ्रॉम आउटसाइड. उसको बहुत द टच इज वेरी रिक्वायर्ड फॉर द चाइल्ड in the initial stages. Here the nervous system responds intellectually. That is, the signals come from within your body like hunger, cold, discomfort, etc. अगर बच्चे ने nappy गिरी कर दी तो वो रोने लगता है because it is discomfort for him. And the parents, the people should understand why the child is crying, and the child should come out of this discomfort. It means the communication, meaning of communication is crying for the child at this age, because the child doesn't have any other means of communication. Now, environmental self. That is, for fetus, uterus is the first experience of body, the first home for the child. Mother's nutritional balances and her emotional state plays an important role in the person's growth. अगर माँ जब खाना खाती है, अगर उसकी इमोशनल स्टेट ठीक नहीं हुई तो वैसे ही बच्चे को वो खाना चला जाता है. अगर वो बहुत ज़्यादा जंक फूड खाती है तो बच्चे को भी वैसे ही आदत लग जाती है आगे जाकर. If the mother is tense, afraid, or if she is using tobacco, alcohol, the child may use them later on in his life, because it has its the child को वही मिलता है खाने में, so it feels that he has to have or she has to have this carving for that. This is the staple food for the child, because it doesn't understand anything at this stage. If the mother is warm and attentive, the child is very happy. The child knows that crying will quench his hunger. रोएंगे तो खाना मिलेगा, रोएंगे तो कंफर्ट मिलेगा, मम्मी उठा लेगी. If the child is unable to get her need met, then there is a mistress form in the child, and this leads to the imbalance of the first chakra.
The development centers around learning to operate the body like sucking, creeping, crawling, grasping, rolling over. ये चाइल्ड की जो डेवलपमेंट होती है वो इनिशियली अगर आप उसको कंफर्ट दो, उसको एनवायरनमेंट में वेलकम करो तो वो जल्दी जल्दी हो जाती है. Because the child is comfortable, it knows that yes, when I do this thing there is someone there to help me out. At first 6 months the change takes place, this child starts sitting up. Other first chakra developments are continuing. Traumas. What traumas are there for the imbalance of the first chakra? Let us see now. Anything like birth trauma, abandonment, neglect or illness, poverty, malnourishment or physical abuse impacts the first chakra. Like birth trauma is if the mother dies suddenly after giving birth to the child, this is a trauma for the child. Abandonment, बच्चा होने के बाद छोड़ दिया, that is an abandonment. The child doesn't get the care of the mother and father, that is a trauma for the child. The abuse, poverty, ठीक से खाना नहीं मिलता है, माँ को खाना नहीं मिलता तो बच्चे को कहाँ से मिलेगा, तो बच्चा malnourished हो जाता है. या physical abuse जो होता है वो सारा फर्स्ट चक्रा पर इम्पैक्ट करता है आपकी. फेसिंग डेंजर, द करंट, जो एनर्जी रहती है, जो करंट रहता है, बच्चे को पता चलता है कि कुछ ना कुछ तो डेंजर है, तो वो जो उसकी एनर्जी रहती है वो डाउनवर्ड्स में ब्लॉक हो जाती है, पूरी एनर्जी अप सारे अपर चक्रास में आ चली जाती है. तो तभी क्या होता है कि बच्चे को लगता है कि नीचे एनर्जी की जरूरत ही नहीं है, सारी एनर्जी हमें ऊपर ही लानी है. बिकॉज दस द चक्रास बिकम इम्बैलेंस, क्योंकि सारे सात चक्रा तो रहते ही हैं, पर जो पूरा फॉर्मेशन होता है वो फर्स्ट चक्र का वोम से 1 ईयर तक होता है. The traumas can be birth and abandonment, like I told you about. Then separation from the mother after the birth, that is pranking. Incubator में बच्चे को रखते हैं, मम्मी एक जगह पर है, बच्चा एक जगह पर रहता है. Even that is a trauma that affects the child's first chakra, that affects the mind of the child. Being abandoned for the above reasons are different. This child may have the tendency to leave the task in half or after a side disruption. अगर आपने देखा होगा कि बच्चा कुछ करने जाता है और बीच में ही छोड़ देता है, या कुछ डिस्टर्बेंस हुआ तो वो आधी चीज़ छोड़ देता है. इट इज़ बिकॉज इन द इनिशियल स्टेज उसका फर्स्ट चक्रा जो डेवलप नहीं हुआ है वहाँ कुछ ट्रॉमा था, इसीलिए बच्चा अभी बड़े होकर वो ऐसे बिहेव कर रहा है. द बिहेवियर पैटर्न इज बिकॉज द फर्स्ट चक्रा there was some trauma in the first chakra which has not been rooted out when the child grows up. Neglect and feeding difficulties, like neglect affects the chakra's basic job of stabilizing the entire system. It may also result in shame which impacts the third and the fourth chakra as well. कि मैं नहीं चाहिए, I am not wanted, ये जो feeling बच्चों में आती है, it is very bad for the child and very bad for the first chakra. It creates an imbalance in the first chakra and it echoes in the way we treat ourselves. वो बच्चा बड़े होकर खुद की बॉडी की इतनी अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर पाता है या उसमें कुछ कमियां रह जाती है. द सेल्फ रिस्पेक्ट जिसे बोलते हैं वो बहुत कम होती है उन बच्चों में. व्हेन द चाइल्ड फील्स दैट आई एम नॉट वांटेड इन दिस वर्ल्ड, अगर आप उसको निग्लेक्ट करोगे बच्चे को तो उसको ऐसे ही लगेगा कि यस आई एम नॉट वांटेड, दे डोंट हैव टाइम फॉर मी, आई एम नॉट वांटेड, देन व्हाई डिड आई कम इनटू दिस वर्ल्ड, there is no one there, I don't have a backup system. It's malnourished or hostile eating situations that you know when dad is angry and he shouts when you are eating. जैसे हम लोग में बचपन में भी कहा जाता है कि खाने के समय सिर्फ खाना खाओ, गुस्सा मत करो किसी के ऊपर, या you know don't watch TV also. When you're watching an action movie and eating the food, you know you have that feelings in you and the food goes inside your stomach and it affects the first chakra. जैसे वो आप बहुत गुस्से में फाइटिंग देख रहे हो या कुछ दूसरा कुछ अत्याचार किसी के ऊपर होता हुआ देख रहे हो, टीवी देखते समय आप खाना खा रहे हो, इट ऑल्सो अफेक्ट्स द फर्स्ट चक्रा ऑफ अ चाइल्ड. इवन द कार्टून्स that this children are watching nowadays, it's very bad. While eating food you should only concentrate on eating the food and nothing else, no watching TV or anything of that sort, even playing games for that matter. And female child is not given food before the male child. It is still prevailing in our society. It dampens the energy, it dampens her self-esteem in the female child. It feels that I shouldn't eat before मेरे भाई का खाना होने से पहले मुझे खाना नहीं खाना चाहिए. Even when the child grows up, she feels that she shouldn't eat before her whole family has eaten anything, which is not good for her.
सम चिल्ड्रन आर ओवरफेड एंड अदर लिव इन अ कॉन्स्टेंट हंगर. जैसे माँ बाप को पता नहीं चलता है बच्चा थोड़ा रोया नहीं, चलो खाना दे दो, खाना दे दो, which they don't actually want. They have some other issues, that's why the child is crying and the parents don't understand the issue. And some people feel, some parents feel, अरे इतना खाना दिया नहीं, अभी बस है, खाना बस है. The child is still hungry, you don't understand that. ये दोनों नहीं होने चाहिए आपको. The result, this all results in the initial stages, what however the child is treated, results in the food allergies or avoidance or addiction to food. बहुत बार बोलते हैं नहीं मेरे बेटे को तो खाने के लिए पीछे दौड़ना पड़ता है. तो क्यों दौड़ना पड़ता है? क्योंकि बचपन में उसको आपने ठीक से नरिशमेंट नहीं दी होगी, उसका जो वार्म चाहिए खाना खाते समय वो नहीं मिला होगा उसे, इसीलिए वो पीछे भागना पड़ता है. बिकॉज ही डजंट लाइक फूड, he may be deprived of food, he may be overfed, that's why he doesn't like food or she doesn't like food. और आपको अरे खाओ ना करना पड़ता है आपको. Nourishment comes not only in food but also as friends, intellectuals and creative stimulations. जैसे फ्रेंड्स के साथ बैठकर इकट्ठा खाना खाता है तो बच्चा थोड़ा ज़्यादा खा लेता है, या फिर वो जो क्वेश्चंस पूछता है, यू नो द इंक्विजिटिव माइंड ऑफ द चाइल्ड. यू शुड नेवर से दैट डोंट आस्क मी एनी क्वेश्चंस. Always answer the question, whatever your child asks any question, please answer the question, because otherwise you know the child will stop asking questions, the child will stop thinking on its own. Let us go again a step further. There is the physical abuse or the illnesses. It causes pain and teaches the child to disassociate from their body sensation. अगर किसी बच्चे को फिजिकल अब्यूज़ किया गया हो या इलनेस की वजह से अगर उसका ऑपरेशन किया गया हो, बहुत दुख रहा हो, even then the child, you know, it goes into its shell and it doesn't tell what emotion it has, that something is not, it's bothering him, it will never say. This results in difficulties in second, third, fourth and fifth chakra. And there is a constant fear. ऐसे बच्चों में हर समय कुछ ना कुछ डर बैठा रहता है मन में. अब क्या होगा, मुझे कोई गुस्सा तो नहीं करेगा. इट्स लाइक यू नो आई एम डूइंग द राइट थिंग, एम आई डूइंग द राइट थिंग. कुछ ना कुछ फियर होता है. और जब ये बच्चा बड़ा होता है, द एडल्ट पर्सन इज ऑलवेज लिविंग अंडर अ कंस्ट्रेंट ऑफ फियर एंड इट हैज़ यू नो इट्स लाइक बहुत बड़ा बोझा होता है उनके ऊपर कि नहीं, डर, कंटिन्यूस डर की वजह से वो द पर्सन में गो टू अ स्किज़ोफ्रेनिक state also. Illness like surgeries, accident also impact the chakra. The car accident, थोड़ा सा एक्सीडेंट हो जाता है, वो बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहता है बड़ों से. You know, people come out of that situation, but the child, if you don't tell them that it's okay with you, we are there with you, it is a trauma for a child. The car accident is the very much trauma for a child, and if it doesn't come up, then the first chakra is again imbalance. Now, what is an inherited trauma and boundaries? It is possible to inherit the first chakra issues from our parents without any direct abuse. Let's take an example. Let's say X was born 2 years after his sister died in a crib. एक बच्चा है, उसकी बहन पालने में ही उसकी डेथ हो गई, तो उसके पेरेंट्स का जो डर है, जो फियर है, the parents have very doting on that person, and because of the attention, because of the fear of the parents, वो बच्चे को भी fear आ जाती है मन में. Parents transmit the fear to the child because parents have the fear कि हमने तो एक बेटी खो दी, अब ये दूसरा बच्चे को कुछ ना हो जाए. So what they do, even when the child is sleeping very soundly, वो जाकर उसको हिलाते हैं, अरे बच्चा जिंदा तो है. You know, they have the fear themselves, and then the child gets transmitted to this fear. It's just, you know, inherited trauma. It's called inherited trauma. तो अगर आप बच्चे को कांस्टेंट अगर नींद नहीं मिली, छोटे बच्चों को नींद की बहुत ज़रूरत होती है, तभी आप उसको हिलाओगे, अरे नहीं बच्चा जिंदा है कि नहीं देखने के लिए, यू नो, कॉन्स्टेंटली द चाइल्ड इज इन इट गोज इन अ शेल. फियर होता है, अरे क्या हो गया. अब पेरेंट्स ही फियर अपने बच्चे को दे देते हैं विरासत में. Boundaries can be a mystery to those who have been deprived nutrition, continuity and safety. Boundaries क्या होती है कि to say no, कि मुझे अब खाना बस हो गया मम्मा, I don't want anything more to eat. तो जो नहीं बोलने की जो आदत,
जो कॉन्फिडेंस वो हमें स्टार्टिंग में ही बच्चों को देना होता है, पेरेंट्स को ही देना होता है, बिकॉज वी शुड रिस्पेक्ट वॉट एवर दे टेल। उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं खाना है, पेट भर गया, ओके स्टॉप इट, डोंट ओवरफीड देम। फिर क्या होगा कि बच्चे को लगेगा कि नहीं अरे मुझे तो कुछ अक्ल ही नहीं, मम्मा बोलती अरे तुझे समझता नहीं है, तुझे भूख लगी है खा ले बेटा, विच इज़ नॉट गुड, बिकॉज यू आर स्पून फीडिंग योर चाइल्ड, डोंट डू दैट। यू शुड रिस्पेक्ट वॉट योर चाइल्ड इज टेलिंग। ठीक है, अभी उसने कहा कि उसको भूख बस हो गया खाना, पर वो थोड़ा भूखा है, ओके द नेक्स्ट टाइम द चाइल्ड विल रेक्टिफाई वॉट एवर ही हैज़ डन अर्लियर। तभी तो वो पेट भरने के बाद ही आपको कहेगा कि हाँ मुझे अब खाना नहीं चाहिए, मेरा पेट भर गया है, बिकॉज ही नोज दैट वंस आई टेल माई पेरेंट्स दैट प्लीज स्टॉप गिविंग मी फूड, दे विल स्टॉप गिविंग मी फूड। सो वो जो बाउंड्री होती है, it's like they know that someone is there, you should respect their boundaries for that. Don't overfeed your child, don't say that you don't understand anything, because they do they're trying to understand, they're trying to grasp the situation. Let them you know make mistakes and come out of that mistakes on their own, of course with your help. We have the that's I told you about enough food and drink. We can withdraw secure in the knowledge that our roots will always support us. अगर आपने यहाँ पर उसको बाउंड्रीज नहीं मिलती है तो what will happen in the future? फॉर एग्जाम्पल शादी हो गई, वो लड़की को बहुत अब्यूजमेंट मिली है ससुराल में, इवन देन शी विल नॉट गो फॉर अ डिवोर्स, और वाई? बिकॉज शी डजेंट हैव द स्ट्रेंथ टू गो फॉर अ डिवोर्स, शी डजेंट हैव द स्ट्रेंथ टू से नो, क्योंकि हम लोग ने यहाँ बाउंड्रीज उसको दी नहीं, उतना उसको खुलापन हमने नहीं दिया है बचपन में कि कहने के लिए कि हाँ तू जो डिसीजन ले रही है, वी आर विथ यू, वी आर देयर फॉर यू, so that you just hang to the unwanted relationship that is there, which is not good for you in the long run. Now let us see about the upper chakra dominance and imbalance. A person when not feeling safe or comfortable will direct most of his energy upwards towards the head, which may result in physical numb, fail to notice that the person is hungry, rest, both of which are the first chakra maintenance program, further result in frequent illness. अगर अब्यूजमेंट है या अपर चक्रा का ज़्यादा डोमिनेंस है, फर्स्ट चक्रा में इतनी एनर्जी नहीं है, अपर चक्रा में उसने सारी एनर्जी डाल दी, डोमिनेंस ज़्यादा अपर चक्रा का है, तब क्या होता है कि वो एक नमनेस वो बच्चे के मन में या इवन द एडल्ट के मन में एक नमनेस आ जाता है। भूख लगती है तो पता नहीं चलता, आपको भूख लगी है पता नहीं, खाना खाना है आपको देना है तो दो। बहुत बार आपने ऐसे सुना भी होगा, भूख लगी है पता नहीं, ये पता नहीं, इट्स बिकॉज द अपर चक्रास आर मोर डोमिनेंट इन दैट पर्सन एंड द लोअर चक्रा इज नॉट डोमिनेंट, देयर इज नो एनर्जी इन द लोअर चक्रा, इट्स बिकॉज ऑफ दैट। और ये जो आदमी है उसको इलनेस कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ इलनेस आती ही रहती है, जुकाम हुआ, थोड़ा वेदर चेंज हुआ तो बुखार आ गया, सम इलनेस कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ इलनेस आती ही रहती है जिंदगी में। Adult with damaged grounding usually is plagued by a terrible sense that something is wrong but cannot tell what. कुछ ऐसे लगता ही रहता है ये नहीं ठीक नहीं हो रहा है, अरे पर क्या ठीक नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या ठीक नहीं हो रहा है, पर कुछ ठीक नहीं हो रहा है मेरी जिंदगी में, ये ठीक नहीं हो रहा है, आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम बट आई हैव सम प्रॉब्लम, आई हैव सम इश्यूज एंड आई वांट टू सॉल्व इट। वो स्ट्रेस रहता है मन में, एंड अगेन डिप्रेशन, हाई बीपी, ये सारी चीज़ें आ जाती है। Without roots bringing energy and nourishment up from the earth, we are weak. जैसे एक पौधा आपने लगाया और वहाँ मिट्टी ही नहीं है तो पौधा उगेगा नहीं उगेगा, वैसे ही हमें एनर्जी हमारे रूट से, अर्थ से मिलती है। रूट चक्रा से, अर्थ से एनर्जी हमारे फर्स्ट चक्र में जाती है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 7 चक्रा से फिर से पीछे से जो नेगेटिव एनर्जी है वो नीचे फिर से अर्थ में चली जाती है। सो इट इज़ अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस, टेकिंग द पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम द रूट चक्र, फ्रॉम द अर्थ, एंड टेकिंग द पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम द स्काई, फ्रॉम द ईथर एलिमेंट, and flushing off all the negative energy in the earth itself. It's an ongoing process. Without communication may be blocked by fear or become excessive and disconnected from feeling. बहुत ही बातें करने लगेगा, ऐसे बातें करता है जिसमें कुछ मतलब ही नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, बड़े लोग बातें करते रहते हैं, कुछ मतलब ही नहीं होता है, बातें करना है इसलिए करते हैं,
even they don't understand what they are speaking about, nor the other people who are listening to them. It is just because of the imbalance of the first chakra and the dominance of the upper chakras. The person is behaving in this sense. Upper chakras are more charged, resulting in confusion, vagueness or feeling of going crazy. बहुत कंफ्यूज रहता है कोई बच्चा या कोई आदमी, ये करूं या वो करूं. उसके सामने अगर आपने 4-5 ये रख दिए कि आपको ये करना है, ऑप्शंस रख दिए, द पर्सन इज वेरी मच कंफ्यूज. नहीं ये करूँ, ये भी अच्छा है मेरे, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए. नो, आपको अगर एक ही थिंग चाहिए तो थिंक विच इज़ गुड फॉर यू, विच इज़ हेल्पफुल फॉर यू. लॉन्ग रन में कौन सी चीज़ अच्छी है, तो वो इतना वो आदमी थिंक नहीं कर पाता है. वो इज़ ऑलवेज इन द कन्फ्यूज स्टेट, ऑलवेज कन्फ्यूजन. अरे ये किया तो ये होता नहीं, पता नहीं. वो एक चीज़ पकड़ लेता है, बाद में 2 मिनट के बाद अरे नहीं वो चीज़ ज़्यादा अच्छी है, आई वॉन्ट दैट थिंग. ऑलवेज इन अ कन्फ्यूज माइंड, ऑलवेज इन अ वेगनेस. कुछ ना कुछ तो ख्याल रहता ही है. एंड उसका आंसर क्या है कि वी हैव टू ग्राउंड आवरसेल्फ. एक्सरसाइज एंड डेफिशिएंसी, एक्सेस एंड डेफिशिएंसीज. एक रूट चक्र जो होता है ना, वो बहुत ही स्लो ऑक्सीलेट होता है, घूमता रहता है. अगर ये रूट चक्र थोड़ा उसकी स्पीड से ज़्यादा घूमने लगा तो क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे अभी. एक्सेसिव फर्स्ट चक्र फील्स हैवी, द बॉडी टू बी मोर लार्ज एंड डेंस विथ एक्सेस वेट अराउंड द हिप्स, थाइज एंड बकल्स. वो ज़्यादा वेट उसके यहाँ पर रहेगा, मोटापा यहाँ पर रहेगा, चर्बी यहाँ पर रहेगी. इफ़ नो वेट का प्रॉब्लम अगर नहीं होगा तो उस आदमी को मसल्स आर हार्ड एंड रिजिड. जैसे बोन्स या मसल्स बहुत ही रिजिड रहते हैं, बहुत हार्ड रहते हैं, वो प्रॉब्लम होती है एक्सेस ऑफ फर्स्ट चक्र. चक्र थोड़ा ज़्यादा फास्ट ऑसिलेट होता है तभी. दे नीड टू लेट गो, शिफ्ट फ्रॉम द एक्सेसिव स्टेबिलिटी बाय वॉकिंग, एक्सरसाइज एक्सेट्रा. क्योंकि वॉकिंग जैसे आप नंगे पाँव चलते हो तो वो आप अर्थ से कनेक्ट होते हो, और फर्स्ट चक्र का बेस है, एलिमेंट है अर्थ. जब आप अर्थ से कनेक्ट होते हो तो नेचुरली बैलेंस आ जाता है आप में, और फिर एक्सरसाइज भी आप कर सकते हो. इन लोगों को रूटीन अच्छा लगता है, सिक्योरिटी अच्छी लगती है, एंड पोजीशन फॉर फिनेंशियल गेन. उनको पैसा बहुत प्यारा है, पैसे कमाने की इच्छा ज़्यादा रहती है कि उनको ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा पैसा हमारे पास है उतना मैं मेरी खुद को सिक्योर ज़्यादा कर पाऊँगा या कर पाऊँगी. वो पैसा कमाने के चक्कर में ज़्यादा रहते हैं. रूटीन लाइफ उनको, आप अगर आप वो सुबह 7 बजे उठते हैं, अगर आप उनको बोलो 8 बजे उठो, नहीं 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 मुझे 7 बजे ही उठना है, नहीं तो मेरा दिन अच्छा नहीं जाएगा. दे लाइक रूटीन, दे थ्राइव इन रूटीन. सिक्योरिटी, जो घर की सिक्योरिटी रहती है, अगर ऐसे बंदे को अगर जॉब में कहीं ट्रांसफ़र मिल जाए तो वो ट्रांसफ़र भी नहीं लेता है, क्योंकि ही इज़ वेरी मच सिक्योर्ड इन द सराउंडिंग दैट ही और शी इज़ इन नाउ. दे फील दैट अगर यहाँ से मुझे अपरूट करके कहीं मैं अलग जगह पर चला भी जाऊँ तो पता नहीं मैं कैसे खुद को मैनेज कर पाऊँगा, मुझे वहाँ पर अभी जो कंफर्ट है वो वहाँ मिल पाएगा भी नहीं. ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में आती, एंड दे डोंट गो एनीवेयर एल्स. उनको जो प्रमोशन मिलता है या उनको कहीं दूसरी जगह जाने को कहा जाता है, they don't go there because they like to be in the same situation what they are living. Deficient first chakra is contracted, vacant, weak, sloppy or unformed. He may sit cross-legged and hunch over with its arm pull inwards. वो बैठेगा भी ना तो ऐसे ऐसे बैठेगा आपसे बात करते. आप देखो, नोटिस करो, आप जब भी कहीं बाहर जाते हो कोई आराम से आप उनको बोलोगे रिलैक्स बैठो, तो भी जैसे अभी मैं क्रॉस लेग बैठी हूँ, पर द हंच ऐसे नीचे होगा, ये आर्म्स हम लोग ऐसे बैठे हैं, इट्स लाइक रिलैक्स. ही विल ऑलवेज, द पर्सन विल ऑलवेज सिट लाइक दिस, ऐसे ही बैठेगा वो. आप देखो, मार्क करो, कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हो ना, जो बंदा ऐसे ही बैठता है ना कंटिन्यूसली और फिजिटी होता है, कभी ऐसे बैठता है, कभी ऐसे बैठता है, कभी ऐसे बैठता है, इट्स ऑफ एक्सेसिव ऑफ फर्स्ट चक्रा. एक खड़ा भी रहेगा तो एक फुट के ऊपर बैलेंस करेगा, फिर दूसरे फुट के ऊपर बैलेंस करेगा, फिर पहले के ऊपर जाएगा. वो स्टेडीली खड़ा नहीं रह पाता ये बंदा. ड्रेसिंग सेंस भी स्लोपी होता है, फैंटेसाइज बहुत करता है, ड्रीम बहुत करता है. इट्स लाइक द पर्सन लाइक्स टू लिव इन द ड्रीम. वो रियलिटी में आना ही नहीं चाहता है.
ये ख्याली पुलाव पकाते रहो, मुझे ये करना है वो करना है। अरे रियलिटी में तो जब फर्स्ट स्टेप लेगा तभी तो ये सारी चीज़ें कर पाएगा। पर नहीं, मैं बड़ा होकर ये करूँगा या मुझे इतना ये करना है वो करना है, बस ख्याली पुलाव पकाते रहेगा, फैंटेसी में रहेगा, ड्रीम करता रहेगा। ही इज़ द बेस्ट ड्रीमर बट डजंट टेक एनी एक्शन टू अचीव दैट गोल। That is then excessive of first chakra deficiency. This exercise is very useful for this people and standing on the ground exercise. खड़े होकर, ज़मीन पर खड़े होकर जो भी एक्सरसाइज है, अगर आप इनको करने को कहोगे तो वो ग्राउंडिंग हो जाएगी, अर्थ से उनको एनर्जी मिलेगी जो फर्स्ट चक्रा में चली जाएगी और फर्स्ट चक्रा बैलेंस होने में मदद मिलती है उनको। Balance and family history. Balance first chakra is solidly grounded yet dynamically alive. There is both flexibility and consistency in the person. अगर फर्स्ट चक्रा आपका बैलेंस हो तो आप बहुत विजिल होंगे, बहुत लाइवली है, द पर्सन इज वेरी लाइवली. Second thing, it gives a sense of inner security, good self care and right to be here and strong sense of presence. बहुत ही सिक्योर्ड बंदा है ये, क्योंकि वो फर्स्ट चक्रा बैलेंस में है, खुद की केयर अच्छी तरह से लेता है, स्ट्रॉन्ग है, उनका प्रेजेंस हर एक को समझ में आता है. द पर्सन व्हेन इट एंटर्स इनटू द रूम, द ऑरा दैट द पर्सन क्रिएट्स इज जस्ट बिकॉज ऑफ द फर्स्ट चक्रा, बैलेंस फर्स्ट चक्रा. अभी फैमिली हिस्ट्री लाइक्स वंस बर्थ, ब्रेस्ट फीडिंग, वॉट वॉज गोइंग ऑन इन द फैमिली एट दैट टाइम ऑफ द अब्यूज. जैसे फर्स्ट चक्रा इम्बैलेंस है तो क्यों इम्बैलेंस है, तो वी हैव टू सी ऑल दिस थिंग्स. एनी मेजर इलनेस, हार्डशिप, टाइप ऑफ बॉन्डिंग विद द पेरेंट्स और विद योर फ्रेंड्स, नर्चरिंग फ्रॉम मदर मिला कि नहीं ठीक से नर्चरिंग उनको, वो पता चलना चाहिए. निग्लेक्ट एंड रिजेक्शन रिजल्ट्स इन डेफिशिएंसीज. स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, स्मूदरिंग, न्यूमरस चैलेंजेस results in excess of the first chakra. Example, I cannot seems to get going or I am afraid all the time. My finances are always deplorable. मुझे पता नहीं, मुझे तो पैसा कमाना है पर ठीक से कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है. ये सारी चीज़ें फर्स्ट चक्रा की इम्बैलेंस की तरह से होती है और उनके मन में ऐसे ख्याल आते हैं. आप उनको हीलिंग कैसे दे सकते हो, आप फर्स्ट चक्रा को बैलेंस करना है आपको. You have to be careful first. Observe the way a person walks, talks, moves, breathes, sits and look out from behind their eyes. We are looking at a contraction, expansion, conflict, freezing, collapse, activation, etc. जैसे कोई पेशेंट आता है तो उसका फर्स्ट चक्रा बैलेंस है कि नहीं, हम लोग ये सारी चीज़ें देखकर जज कर सकते हैं, आप भी जज कर सकते हो. नोटिस दैट दीज आर एनर्जेटिक रादर देन इमोशनल स्टेट. वो एनर्जी रहती है उसमें, दैट इज़ वेरी गुड फॉर हीलिंग. एनर्जेटिक स्टेटमेंट मेड बाय द बॉडी इज मोर इम्पॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप, वॉट हैपन्स इन योर बेली वेन यू फील स्कैर्ड, जस्ट आस्क देम या आस्क द क्वेश्चन. हर एक पार्ट, यू नो, फर्स्ट चक्रा का अगर कुछ इम्बैलेंस हुआ तो द पर्सन डजंट लाइक हिज ओन बॉडी. ये नहीं, मैं खूबसूरत नहीं हूँ या आई एम फैट और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. द पर्सन हेट्स हिज ओन बॉडी. सो द फर्स्ट थिंग अ कंसल्टेंट शुड डू इज टू ट्राई टू मेक बैलेंस विद द हार्मनी विद द सेल्फ, विद द बॉडी ऑफ द पर्सन. उनको कहो कि आप पैरों से चालू करो कि आपको आपके पैर क्यों नहीं अच्छे लगते. इट्स लाइक यू थिंक दैट यू आर योर फीट एंड देन यू से आई एम माई फीट एंड हाउ आई एम फीलिंग नाउ. आप आंखें बंद करो और सोचो कि मैं पैर हूँ, अभी मुझे कैसा लग रहा है. डू आई फील डर्टी. कभी कभी ऐसे लगता है कि नहीं मेरे पैर बहुत गंदे हैं, भद्दे हैं. वॉट आर द फीलिंग्स दैट कम इन योर माइंड व्हेन यू इमेजिन योर सेल्फ दैट यू आर अ फुट. ऐसे करते 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 सारे ऑर्गन्स को उनको पूछना है आपको कि उनको कैसे फील हो रहा है, हाउ दे फील दैट इट इज़ हाउ देयर बॉडी इज़, और उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट आती है. अभी जब जैसे मैंने पहले कहा था कि what happens in your belly when you feel scared. Ask the question in each body part, like imagine you are feeling, not feeling and telling me, like when the whole body has a chance to speak. Example,
फीलिंग स्कैरी व्हेन एम्प्टी, हियर इट इज़ अ स्टमक, द स्टमक आपको बोल रहा है कि मुझे बहुत डर लगता है जब मैं एम्प्टी रहता हूँ, मुझे भूख लगती है, बहुत डर लगता है मुझे. बट फील नम व्हेन फुल, पेट भर के खाना खाने के बाद बहुत नम फीलिंग आती है, बहुत लेथार्जिक हो जाता. तो उसको पूछना कि क्यों, डू यू हैव एनी फियर, जो बचपन में ट्रॉमा हुआ हो, इज देयर एनी फियर, सो यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट फियर. वाई डू यू फील स्कैर्ड, यू हैव टू द कंसल्टेंट और यू शुड आस्क द क्वेश्चन, और उसको उसमें से बाहर लाना है आपको. Affirmation is the best thing that you can do for a chakra. The first chakra represents physical reality. When damaged, our relationship to physical world is damaged. Both in excess and deficiency, healing occurs through creating a new relationship with our body, earth and surroundings. Massage, walking on barefoot is the best thing to do initially. क्योंकि वो अपने बॉडी को प्यार ही नहीं करता है. सो व्हेन यू स्टे देन आप एक मसाज ले लो, यू विल फील हार्मनी विथ योर बॉडी. एंड देन वॉकिंग की एक्सरसाइज हुई, या ये जैसे कंसल्टिंग मैंने पहले अभी आपको बताया, अगर आपने ऐसे किया तो द पर्सन विल बी इन हार्मनी विद द फर्स्ट चक्रा एंड द फर्स्ट चक्रा विल बी बैलेंस. Always give them positive affirmation. All the things that are afraid of, say something positive so that I can relate to them and come out of it. जैसे कोई मोटा है, पेट थोड़ा बड़ा हुआ है, ठीक है मेरा पेट बड़ा हुआ है, बट आई एम डूइंग एक्सरसाइज, उसकी वजह से मेरा मोटापा कम होने वाला है. आई नो आई एम गोइंग टू रिड्यूस वेट, एंड फॉर रिड्यूसिंग वेट आई एम गोइंग टू डू एक्सरसाइज डेली. ये जो एफर्मेशन है, ये जो पॉजिटिव थिंकिंग है, ये जो पॉजिटिव एफर्मेशन है, वो उनको देनी है कंटिन्यूसली. एंड द पर्सन शुड ऑलवेज यूज पॉजिटिव एफर्मेशन व्हेन सीइंग हिज और हर बॉडी और द सराउंडिंग्स अराउंड हिम. This may be achieved by the way of EFT, positive thinking, meditation, breathing techniques, yoga, with constant conversation with self that they are needed in this world. खुद से ही बातें करो. आपने एक्सरसाइज की, आपको थोड़ा अच्छा लगा, ओके नाउ आई एम फीलिंग लाइट, मेरे फीट बहुत लाइट फील कर रहे हैं, माई फीट्स आर वेरी ब्यूटिफुल, आई एम वेरी ब्यूटिफुल. यू शुड ऑलवेज से सॉरी आई एम वेरी ब्यूटिफुल. आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, हेल्दी है, एंड यू आर वेरी अट्रैक्टिव, यू आर फीलिंग वेरी ब्यूटिफुल ऑन द टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड. when you always keep on saying this, it goes into your subconscious mind, and when a message goes into your subconscious mind, you act the same way as you are feeling. आप एक्सरसाइज भी करोगे, आप मेडिटेशन भी करोगे, आप पॉजिटिव एफर्मेशन भी लोगे, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये मैसेज चला गया है कि यू आर ब्यूटिफुल. अगर आप एक आंखें बंद करके खुद को देखो कि व्हेन यू फील दैट यू आर ब्यूटीफुल, योर बॉडी इज़ ब्यूटीफुल, यू विल फील लाइट, यू विल फील हैप्पी. एक आंख में एक चमक आती है, यू विल फील लाइट टू डू मच मोर वर्क. अगर आपको ऐसे लगता है अरे नहीं यार हाथ बहुत, मैं बहुत काली हूँ, बहुत मोटे हैं, पता नहीं लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, तो लोग यू अट्रैक्ट निगेटिव फीलिंग्स. वो निगेटिव फीलिंग्स जो आप दूसरों को देते हो वो ही आपके पास रिबाउंड होकर आती है, एंड पीपल विल स्टार्ट लुकिंग एट यू इन दैट वे ओनली, बिकॉज यू आर अट्रैक्टिंग दैट टाइप ऑफ पीपल टू लुक एट यू विथ अ निगेटिव फीलिंग. ऐसे मत करो, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव एंड यू विल अट्रैक्ट पॉजिटिव पीपल सराउंडिंग यू. एंड इफ यू वांट टू डू एनी मेडिटेशन, जैसे आपका नी प्रॉब्लम है, काफ का प्रॉब्लम है, तो आप वहाँ पर हाथ रखकर आप मेडिटेशन कर सकते हो फर्स्ट चक्रा को बैलेंस करने के लिए.